Hello everyone, welcome to MBA Karo. So today is day 17 of September sprint, and today you can see that we are going to cover questions on algebra covering these two topics, series and progressions and logarithms. ठीक है, अब कुछ लोग series and progressions को number system में भी ले लेते हैं, does not make a difference. ठीक है, but it is an important topic from examination point of view. Both these topics are very important, comparatively easier topics than your functions and inequalities. ठीक है, इसमें varieties of questions होती हैं, logarithms and plus surds and dices. इसकी property based एक question तो आता ही आता है, right? Short question. Series and progressions के भी या तो direct questions आ सकते हैं या फिर clubbed way में आ सकता है. Clubbed way में means like एक geometry का question होगा, कुछ में AP का concept दे दिया, or there could be a question in arithmetic. They could give you GP, और लाइक अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क में आपका कई बार आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड, राइट? और दे माइट गिव यू लाइक टाइम एंड वर्क में एक बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन दे दिया था. तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे एंड यू विल एंजॉय द क्वेश्चन सॉल्विंग देम एंड टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग कंटेंट फॉर ऑल एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस on this channel. So ये हमारा शेड्यूल है. I hope by now you must have memorized this schedule. So आज day 17 है, in which we are going to cover algebra based topics. If case you are preparing for CAT and looking for structured preparation, okay, so what happens is like you feel that okay, I am preparing but from random resources unable to structure my thoughts, या फिर आपको हमारा कंटेंट देख के, आपने ये सीरीज देखी, आपको लगा कि आप हमारा पढ़ाने का तरीका काफी सही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये काफी ट्रिक्स एंड ऑल जो मिल सकती हैं जो आपको स्कोर बूस्ट कर सकती हैं, राइट? सो इवन इफ लाइक you know the basics, in the 2 months you can prepare well with us and crack these exams. So if you want, you can try our courses and you can buy section wise modules also, which most institutes do not offer. And plus our courses are quite affordable with quality content. तो आपने content की quality तो हमने videos में देखी होगी. तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. राइट, इट सेज रघु borrowed some money from his friend Akash to admit his daughter to a reputed B school. Story apart, he agreed to pay interest free loan. ठीक है, सो बेसिकली देयर इज नो इंटरेस्ट. इसको इतना पे करना है, 6 लाख पे करना है इन मंथली इंस्टॉलमेंट विच इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट अमाउंट. राइट, तो अभी तो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो हमें पता है, बट एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा? तो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट. तो मतलब ये क्या है कि आपका एपी बनेगा. सो वेयर द फर्स्ट टर्म इज ए, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपका एपी होता है. Okay, now in this case we are given that after 20th installment he found he had paid 3/4 of the loan, and after 25 installments the entire loan has been paid. So we need to find the first installment. Okay, so we need to find the value of a. That is the general notation. Now sum of ap is given by n by 2 a plus l, or if you do not know the last term, it basically is n by 2 2a plus n minus 1 t. सिंपल फॉर्मूला लगाना है. इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता है, राइट? डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ एपी निकालना है. सो इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग. So first case, he has paid 20 installments. So sum of 20 terms is equal to 20 by 2, 2a plus 19b. And what is that equal to? That is equal to 3/4 of loan. Total loan 6 lakh है, 3/4 कितना हो जाएगा? 450,000. ठीक है, 450,000. अब like I'm writing k for 1000, or even if I do not write k, I know that it is in thousands. ठीक है, तो अननेसेसरी जीरोस लिखने के बजाय 450 ले लेते हैं. Similarly, sum of 25 terms will be 25 by 2, 2a plus 24d, 2a plus n minus 1d. So if there are 25 terms, 24d, that is equal to 600k. ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई. अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. We will give us 2a plus 19d equals
10 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 45, और सेकंड इक्वेशन बन गई 2a प्लस 24d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 600 इंटू 2/25, सो 25 इंटू 24 इज 600, तो ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू तो चाहिए a की, बट इट इज सिंपल टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, राइट? इन दोनों का डिफरेंस बहुत इजीली निकल जाएगा। So this is thousands. You can bring that back, and difference is 5d, which is 3000. 5d 3000 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 600. So if value of d is 600, you can put in any of the two equations. चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी आपका आंसर सेम आ जाएगा. So 2a plus 90, 19 into 6 is 11400, that is equal to 45,000. ठीक है, तो 2a आपका आ गया, आपका 114 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दैट इज 336 and double zeros, and that will mean a is 16800, so 16,800 हमारा आंसर आ गया. ठीक है, सो टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है और दैट विल बी द आंसर. ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है बट नॉट एन इजी वन, क्योंकि इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी. Now here's the next question. This I would rate is an easy question and should be done in the exam. Sum of two n terms of this arithmetic progression is greater than the sum of n terms of another arithmetic progression. You need to tell the smallest value of n. Okay, so sum of two n terms. So sum of terms क्या होता है? 2n by 2, 2a plus n minus 1d. So 2a, a is 2, right? And d is 4, n minus 1. So 2n, यहाँ पे number of terms कितने हैं? 2n minus 1, and common difference is 4. ठीक है, तो ये हमारा आ गया sum of 2n terms, right? And that is greater than, is given that it is greater than sum of n terms. So n by 2, 2a, 2 into 56. So 2a होता है, that is 112. Its sum of n terms is n by 2, 2a plus n minus 1t. So same previous question में भी देखा था. So n की वैल्यू यहाँ पे 2n होगी, because we are finding the sum of 2n terms, and here we are finding the sum of n terms. And d here is 2, common difference is 2. So n minus 1, number of terms is n minus 1 and 2. ठीक है, तो n cancel हो जाएगा, upon 2 cancel हो जाएगा. अब इसे simplify कर दो, 2 into 2 is 4, and this is 8n into 2 is 16n, और ये हो जाएगा 4 into 2 minus 8, that equals to 112 plus 2n minus 2. So n के सारे terms एक साथ ले आओ, that will becomes 14n, right? And see, it is not equal, it is greater than. So we will put the greater than symbol here. 14n will be greater than, this will be 110, and यहाँ पे -4 जाके 114 बन जाएगा. 14n should be greater than 114, right? Now n should be an integer value, right? So 14 into 8 is 112. So which is not satisfying. So if you take n is equal to 9, will be greater than this. So smallest value of n is 9. 9 से ज्यादा हो सकता है, तो 10 लोगे, 11 लोगे, that of course will be greater. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको दोनों सम का फॉर्मूला लिखना था और n की वैल्यू निकालनी थी. नाउ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट द फर्स्ट टर्म and the common ratio of a geometric progression be positive integers. तो GP है. If the sum of squares of its first three terms is 33033, what is the sum of these three terms? Okay. So first of all, GP के terms हम कैसे लेते हैं? ये लेते हैं, ये तीन terms है, right? अब इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? a square r square और a square r to the power 4. ये सम हमें गिवन है 33033. Now before we solve this question, as we discussed in the very first video of this series, कि all topics are important. ठीक है, कई लोग आपको कहते हैं कि यार अरिथमेटिक और अलजेब्रा करके चले जाओ, आपका कैट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा. ठीक है, फाइन, अरिथमेटिक अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार स्पेशली नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चे छोड़ के जाते हैं. ठीक है,
नंबर सिस्टम में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, डिविजिबिलिटी, ठीक है, फैक्टोरियल्स, ऑफ कोर्स वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम आता है, डिविजिबिलिटी रूल्स और रिमाइंडर के बेसिक एचसीएफ एलसीएम, ये आपको बहुत जरूरी आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब वो कैसे यूज हो रही है, अगर आप 33033 को फैक्टराइज करने बैठोगे काफी टाइम लग सकता है, बट एक चीज याद रखना, अगर कोई नंबर एबीसी फॉर्मेट में होता है, अब यहाँ पे जैसे हमारा 033 है, तो वो क्या होता है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 1001, ठीक है, 1001 इंटू एबीसी का फॉर्मेट होता है। अगर एबीसी इंटू 1000 कर लोगे, एबीसी फॉलोड बाय 3 zeros, and if you add abc it becomes abc. Now 1001 has three factors, 7 into 11 into 13, तो ये एक स्पेशल नंबर होता है, राइट। अगर आपको ये चीज पता है तो दिस क्वेश्चन विल बिकम सिंपलर फॉर यू टू सॉल्व। अब हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर वी विल टेक कॉमन, वी हैव 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 दैट इक्वल्स 33 इंटू 1001। ना 1001 को भी हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 3, और 1001 कितना होता है, 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। ये हमने ब्रेक कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता थी। नाउ समटाइम्स कवरिंग सच टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट, वरना ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इंस्टेंटली फिगर आउट कर लोगे। अब नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, ए स्क्वायर, अब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और यू कैन से नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ पे स्क्वायर किसका दिख रहा है, 11 का दिख रहा है, तो दैट मीन्स ए इज 11, तो ए 11 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रिमेनिंग पार्ट देखना है, तो वी विल गेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 इज 91 इंटू 3 273, ठीक है। अब एक और स्टेप बताता हूँ, ठीक है, जो लोग गलत करते हैं और कुछ लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो क्या कराते हैं, वो आपको कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, दे विल से आर टू द पावर 4, तो वो कहेंगे कि फोर्थ पावर है, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो वो कहेंगे लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस, फिर आप कहेंगे कि एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 272 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन बनेगी, फिर कहेंगे कि एस की वैल्यू निकाल दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक अननेसेसरी स्टेप बीच में इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, और ये चीज ऐसी होती है, स्मॉल थिंग्स व्हिच मेक डिफरेंस। नाउ एट दिस स्टेट पीपल ट्राई सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है कोई मेथड लगा के, आपको कॉमन सेंस लगाना है। एक तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब कोई भी इंटीजर्स आप लोगे नेचुरली, आर टू दी पावर, कोई भी नंबर की फोर्थ पावर बड़ी होती है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर वैल्यू में है, तो फोर्थ पावर सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो 1 की फोर्थ पावर तो आपको पता 1 ही होती है, 2 की पावर 4 इज 16 ओनली, राइट, 3 की पावर 4 आपकी 81 होती है, 4 की पावर 4 256 होती है, राइट, आपको इतने सारे एक एक लिखनी नहीं है, आपको दिमाग में रखनी होती है, ठीक है। 5 की अगर हम फोर्थ पावर ले लेंगे तो वो 625 हो जाती है, वो बड़े नंबर से बड़ी होगी। तो क्या हम ऐसे ऐसे, it is not called some hit and trial, it is called logical thinking and knowledge of numbers, basic knowledge। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो देन यू आर नॉट दैट 99 परसेंटाइलर, फिर तो आपको आता है कॉन्सेप्ट बट आप एक 95 परसेंटाइलर की तरह सॉल्व कर रहे हो। ऑन द फ्लिप साइड अगर आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर जाना है तो आपको कुछ लॉजिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ती है, और इस सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिनमें लॉजिकल थिंकिंग बताई है कि आपको इक्वेशन ना सॉल्व करके ये सोचना है कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको 4 की फोर्थ पावर नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, ये देख लो कि 3 की फोर्थ पावर पड़ा है, ठीक है, 81 ही बन रहा है, 3 से नहीं बनेगा, उसके आपको 4 ही लेना पड़ेगा, 5 में बहुत ज्यादा बन सकता है, राइट, सो वी गेट 4, और यहाँ पे क्या दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, सो आर हमारा आपकी आपका 4। तो एक स्टेप बच गया, थोड़ा सा स्टेप बचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम बचा, मे बी वो 15 सेकेंड्स भी है, पर वो 15 सेकेंड्स भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सपोज आप इसे 2 मिनट्स में करते, ठीक है, तो आप इसे 1 मिनट 45 सेकेंड्स में कर पाओगे। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स इस ये भी बहुत सेवियर है। तो ये क्वेश्चन विच इज सपोज टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। वन इज कि आपको ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिए भी होते तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते क्योंकि आपको ए और आर तो निकालना ही पड़ता। सेकेंड थिंग इज अबाउट दिस नंबर,
अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप बहुत टाइम लेते। तो दैट इज वाई पीपल वुड कंसिडर इट एज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई वुड से दैट इट इज easy to moderate knowing this property and knowing applying the numbers over here। ठीक है, तो ये आ गया हमारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, a is 11, 4 times is 44 and 4 times is 176। इनको ऐड कर लो तो 220 plus 11 231 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी सही क्वेश्चन है और सही मेथड बता दिया कि कैसे करना चाहिए इसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब ये क्या है कि ये एक दिस सीरीज इज कॉल्ड एजीपी। ठीक है, जिसने पढ़ा है एजीपी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इसमें आप समझ जाओगे। हम दो क्वेश्चन करेंगे एजीपी के। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये सीरीज का सम निकालना है, तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। 1 + 3/4 प्लस 5/16 प्लस 7/64 प्लस 9/256 एंड सो ऑन। राइट, अब आप देखोगे इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, वो एक एपी बन रहा है, लाइक 1 3 5 7 9 ऐसे करके एक एपी बन रहा है, तो इसमें हमें एपी भी दिख रहा है। और अगर आप वैसे देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 1/4, डिनोमिनेटर इज 1/4 1/16 1/64 1/256। ये हमें क्या दिख रहा है, एक जीपी दिख रहा है, एक हमें इसमें एपी दिख रहा है और इसमें हमें जीपी भी दिख रहा है। तो अगर हमें एक सीरीज में एपी और जीपी दोनों का मिक्सचर होता है तो दैट सीरीज इज कॉल्ड एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। पहले आप क्या करो, s इक्वल टू द सम ऑफ दिस सीरीज लिख दो। ठीक है, s से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है सो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। वी विल मल्टीप्लाई विद द कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है, 1/4 1 1/4 1/16 1/64, तो हमारा r क्या है, 1/4 है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब 1/4 के बाद क्या करना है, थोड़ा सा गैप देके लिखना है। सो फर्स्ट टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1/4। सेकेंड टर्म को 1/4 से कर लेंगे तो 3/16। थर्ड टर्म विल बिकम 5/64, देन फोर्थ टर्म विल बिकम 7/256 एंड सो ऑन। ठीक है, विल गो ऑन इंफिनिटी। ठीक है, अब क्यों गैप देके लिखा, अगर आप देखोगे इनका डिफरेंस 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, डिफरेंस इज कमिंग एज 2, so now if you subtract it will become s minus 1/4 s is 3/4 s, that equals, देखो ये पहला टर्म जीपी में नहीं आएगा, बाकी जीपी बनेगी। so when you subtract this it is 1 and this is 2/4 2/4 plus 2 by this is 16 plus 2/64 plus and so on, you will get a gp except the first term, everything is in gp, so this is a gp that you are getting. And what is the sum of infinite gp, right? If the common ratio is less than 1, so in that case the sum is given by a upon 1 minus r। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। sum of an infinite gp is a upon 1 minus r, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4 s is equal to 1 plus first term is 1/2 and common ratio is 1/4। ठीक है, 1/4 हो रहा है, 2/4 था, 2/16 2/64, so common ratio is 1/4। so 1/2 upon 1 minus 1/4, 1 minus 1/4 is 3/4, so we can say 1 plus 1/2 into 4/3 because denominator में 3/4 आ गया, so it becomes 1 plus 2/3 which is 5/3। so what do we get, s is 5/3 into 4/3 which is 20/9, तो आपका आंसर आ गया 20/9। सो ये हमारी सम हो गई इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे हम इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल सकते हैं यूजिंग एजीपी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन दिस केस द सम इज गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें एपी क्या बन रहा है, x is 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube plus
and so on, right? Now in this case the AP is 1, 4, 7, 10, 13 and so on. और अगर GP की बात करें तो ये बन रहा है 1 x x square x cube and so on. ठीक है, तो AP भी बन रहा है, GP भी बन रहा है, right? Now we multiply by the common ratio. Common ratio is x, so it becomes, now first वाले को थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं, इसको इसके नीचे लिखो, so it becomes x plus, write this 4x square plus 7x cube plus and so on till infinity. No need to write further terms like we did in the previous question. So what we get, 1 minus x times of s is equal to 1 will come as it is, and if you subtract, this is 3x plus 3x square plus 3x cube and so on till infinity. Okay. This part is not a part of GP, so we will write as it is. The other part is 3x upon 1 minus common ratio is x. So when you simplify it, 1 minus x plus 3x, 1 plus 2x upon 1 minus x. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 minus x in times of s. So s will be equal to 1 plus 2x upon 1 minus x का whole square, and this value is given to us as 35 upon 16. 35 upon 16 आ गया. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे. 16 plus 32x, this will become x square, so 35x square minus 70x plus 35. 1 minus x square is x square minus 2x plus 1. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको एक साइड ले लेते हैं. 35x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 102x प्लस 19 इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. ठीक है, अब इस स्टेज के बाद एक और चीज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हो. आप टिपिकली क्या करते हो, इसमें आप स्प्लिट करते हो. ठीक है, स्प्लिट से ही करोगे, बिकॉज इसमें जो आपका श्रीधराचार्य रूल है, डिस्क्रिमिनेंट रूल विल नॉट वर्क, बिकॉज आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac. इट्स अ वेरी बिग थिंग टू अप्लाई ओवर हियर, राइट? सो द थिंग दैट यू विल अप्लाई ओवर हियर इज टिपिकली द स्प्लिट मेथड. ठीक है, तो स्प्लिट मेथड में आप क्या करोगे, you will split the central term. So basically we need the product as 35 into 19 and the sum as 102. ठीक है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा इसको स्प्लिट करने के लिए 5 into 7 कर लोगे. Now if you observe, 5 into 7 is 5 into 19 is 95 and 7. So if you consider the numbers minus 95 and minus 7, right, their sum is this and product is this. तो अब हम देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन कैसे करता है और हम कैसे डायरेक्टली इसे सॉल्व करें. ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन कैसे करेगा इसे, 35x स्क्वायर माइनस 95x माइनस, और यहाँ पे माइनस 7x ले लेगा, जैसा मन करे, माइनस 95x प्लस 19 इक्वल्स टू 0. फिर क्या करेगा, 7x कॉमन ले लेगा, 5x माइनस 1 एंड यहाँ पे माइनस 5 लेगा, क्योंकि इससे नहीं बन रहा, राइट? लाइक सॉरी, माइनस 5 नहीं, 19 कॉमन लेगा एंड 5x माइनस 1, क्योंकि अगर 19 कॉमन लोगे तो माइनस 5x बन जाएगा और हमने बाहर 5x माइनस 1 लिया, सो दैट इज 0. देन पीपल विल राइट 7x माइनस 19 इंटू 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दे विल से x इज इक्वल टू 19 by 7 एंड 1 by 5. तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप लगे. चलो आपने ये स्प्लिट किया तो 2 स्टेप तो एटलीस्ट फिर भी लगे, 2 स्टेप और फिर आपने आंसर लिखा. ये नहीं करना है, एक डायरेक्ट वे बता रहा हूं. ठीक है, पहले आपने स्प्लिट कर दिया, सो स्टेप 1 इज स्प्लिट. सेकंड स्टेप इज रिवर्स साइन. एक साथ करना है आपको तीनों चीजों को. और थर्ड स्टेप इज डिवाइड बाय 8. तो आपकी सीधे रूट्स निकल के आ जाती है. डिवाइड बाय a मींस a जो होता है, जैसे जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, दैट इज कॉल्ड a. So this is what you need to do. Now we will see in one direct step. So split we did 95 and minus 7. Reverse the sign.
So the signs are 95 and 7 and divide by A. A is 35 here. So we can directly get the values. You have to think of the split numbers. That is non-negotiable, but you do not have to do this activity anymore. So you just directly get it 19 by 7 and 1 by 5. You directly got the values instead of, I mean, we can, this is a method to skip those 2-3 steps of quadratic equation. So split निकाल दिया, split निकाल के आपको sign reverse करना है और divide by a कर देना है. You will get the roots of the equation. Okay, much faster way to do it. Okay, now we got the answer as 19 by 7 and 1 by 5. 1 by 5 is present in the options. Why 19 by 7 is not given in the options? Or is the question incorrect? So always remember that whenever we have that infinite series, infinite GP, so infinite GP we can only find if the common ratio has a modulus which is less than 1. ठीक है, अगर 1 से बड़ा common ratio होगा या -1 से छोटा common ratio होगा, the series will expand. Okay, so अगर आप 2 times करते रहोगे तो series जो numbers हैं वो बड़े होते रहेंगे. अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 1 फिर 8 फिर 28 राइट, फिर 8 into 10 is 80. ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो हम इनका आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे. अगर हम सपोज लेस देन 1 लेते हैं, ठीक है, तो नंबर छोटे हो रहे हैं. लाइक इफ यू टेक 1 by 5, so it is 1 plus 4 by 5 plus 7 by 25. अब छोटे छोटे नंबर होते जा रहे हैं राइट, तो छोटे छोटे नंबर होते रहेंगे. सो दे कैन रीच अ वैल्यू ऑफ 0 when they go till infinity. So always remember that if you are getting common ratio more than 1, then it is not a valid common ratio. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चन गलत था, कुछ लीव करके आ जाते हैं. So always remember that if you are getting one of the answers, mark that as the answer. Maybe the concept has slipped out of your mind. हो सकता है आपको समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि 19 by 7 भी आया आंसर, बट आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा कि क्यों था. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करने चाहिए. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है, सपोज 2 आंसर आने चाहिए थे बट एक ही आंसर है, तो एटलीस्ट एक आंसर जो आ रहा है वो मार्क करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो दे मे नॉट एक्सेप्ट इट. ठीक है, वो उस पर्सन को मार्क्स दे सकते हैं जिसने एक भी सही आंसर मार्क किया है. तो कई बार ऐसा हो जाता है. आइडियली अगर क्वेश्चन गलत है तो सबको मार्क्स मिलने चाहिए, बट in any such scenario you should mark one of the answers. Maybe you are skipping one of the concepts, or like the question itself is wrong. Okay, so we did a couple of questions on AGP as well. Okay, so I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and subscribe to our channel. और ये सीरीज आप पूरी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काफी इंटरेस्टिंग वेज पता चलेंगे. जैसे आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, हमने सीखा कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे हम इन वीडियोस में बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस कर रहे हैं राइट, जिससे आपको अपना स्कोर बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट सेज इफ ए बी सी डी आर इन एचपी देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू. ठीक है, अब यहाँ पे एक टिप देता हूँ, कभी भी ऐसे ही आपको सिर्फ वेरिएबल दिए और रिलेशंस पूछा है तो टेक सिंपल नंबर्स. ठीक है, सबसे सिंपल होता है 1 1 1 1. ठीक है, बट अगर हम 1 1 1 1 ले लेते हैं तो ये हमारा 1 बनेगा 1 बनेगा 1 बनेगा. ठीक है, टोटल 3 बन रहा है. अब देखो ये टोटल आपका 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सो दिस इज नॉट एन आंसर. ये टोटल 3 आ रहा है और ये टोटल 4 आ रहा है. तो दो ऑप्शंस तो हमने रिजेक्ट कर लिए 1 1 1 1 सोच के. ठीक है, बट एक दूसरी टिप बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है 1 1 1 1 सेटिस्फाई ना करे मेनी अ टाइम्स. तो इफ यू आर आस्क्ड एन एपी, अगर एपी है तो आपको वैल्यूज देनी चाहिए 1 2 3 4. अगर जीपी है तो ट्राई टू टेक वैल्यूज लाइक 1 2 4 8. ऐसे करके सिंपल वैल्यूज से टेस्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, अब क्योंकि ये एचपी है, एचपी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ एपी. ठीक है, तो यहाँ पे एपी हमने दिया 1 2 3 4, तो एचपी लेंगे 1 1 by 2 1 by 3 एंड 1 by 4. सो दिस इज ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो ये स्टेप हो गया. अब क्या करना है, हमें निकालना है ए बी बी सी सी डी. ए बी इज 1 into 1 by 2 1 by 2 plus BC is 1 by 2 into 1 by 3, that is 1 by 6, and CD is 1 by 3 into 1 by 4, which is 1 by 12. ठीक है, तो निकल गया.
अब इनका टोटल कर लेना है। 9/12 विच इज 3/4, तो 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 3AD, 3/4, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर। If you take 3AC, you will not get. So 3AC, if you take 3, 1 into 1/3, that will be equal to 1, right? Which is not our answer. तो fairly simple. ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दिया हो कि ये AP में है, ये GP में है, टेक सिंपल वैल्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज 6 टर्म्स। एक जीपी है, उसमें 6 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया है। एक एपी की बात कर रहे हैं, उसका नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, कॉमन डिफरेंस दिया है, और दिया है दोनों एपी और जीपी दोनों का सम सेम है। वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम ये एपी देखें और एक जीपी, दो चीजें दी हुई। GP has 6 terms. First term is 192 and common ratio is 1.5. तो GP का सम भी बता देता हूँ। GP में जो सम होता है, ये हमारा सम होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कॉमन रेशियो देखें, द कॉमन रेशियो इज 1.5। ये हमारे आपको निकालना पड़ेगा। 1.5 raised to the power 6, maybe square you can calculate, cube you can calculate, power 6 is too difficult to calculate, right? If it is an integer, maybe 2 की power 6 आप निकाल सकते हो, 3 की power 6 निकाल सकते हो, but it is not advisable to find 1.5 raised to the power 6। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम मैनुअल काउंट करेंगे। मैनुअल कैसे करेंगे? 192 पहला टर्म है, ठीक है, 1.5 मीन्स हाफ ऐड कर लो। इसका हाफ कितना होता है? 96, ऐड करो, आपका आ जाएगा 288। इसका हाफ होता है 144, ऐड करके आ जाएगा 432। इसका हाफ है 216, 648। ठीक है, 648 का हाफ होता है 324, तो 972, एंड इसका हाफ है 486, तो ये आ जाएगा आपका 8, 5, 14, 58। ठीक है, तो हमारे 6 टर्म्स हो गए, हमें इन सबको ऐड करना है। तो ये हमारे टर्म्स हो गए, का टोटल निकालना है। 2, 8, 10, 20, 30, 3 + 9, 12, 20, 23, 27, 34, 39, 3 carries. This is 4, 6, 10, 16, 16 plus 13 is 29, 2 plus 1 is 3. So the sum is 3990. ठीक है, जो कह रहा है कि sum is same, that is 399। अब हमें क्या दिया है? एपी में हमें दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और कॉमन डिफरेंस दिया है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सम। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एपी जो आपको पता होनी चाहिए, और कुछ केसेस जैसे इस केस में वो काम आएगी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? इन एन एपी, मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या ये प्रॉपर्टी पहले से पता थी कि नहीं पता थी। अगर नहीं पता थी तो आपके लिए अच्छी लर्निंग हो गई। ठीक है, तो मिडिल टर्म एवरेज है। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म इज n + 1/2th, और n यहाँ पे होता है ऑड। अगर n इवन है तो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें दो नंबर्स के बीच में आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे n ऑड नंबर्स होते हैं तो वी अप्लाई, so that we get 11th term. So the 11th term of this AP will be एवरेज है 3990। आपका सम है, डिवाइड कर दो 21 से। तो 21 से डिवाइड करेंगे, 21 into 1 is 21, 189, 9। तो 11th टर्म इज 190। ठीक है, अब 11th टर्म 190 है, सो इट इज a + 10d
that is equal to 190. D is 1.5, so this is 15 and A will be 175. तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें एक दो चीजें हमने देखी कि यहाँ पे आपको सम मैनुअली निकालना पड़ेगा, बिकॉज 1.5 की पावर 6 हमें नहीं पता है। अगर आप निकाल सकते बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज कि मिडिल टर्म एवरेज होता है, उससे हमने फास्ट कर लिया जो सेकंड पार्ट था, राइट। सो डेफिनेटली इट वाज a moderate to difficult question, easy or not at all, it wasn't not at all easy. So a question that should be avoided at the first go. देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको करनी आती है बट आपको पता है इसमें टाइम लगेगा, तो उसको बिगिनिंग में अवॉइड करना चाहिए। A, B, C are three distinct real numbers in GP. These are numbers in GP, real numbers. And A plus B plus C is XB. Then X cannot be. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ऑल्दो जीपी के अलावा एक और प्रॉपर्टी लग रही है which we shall discuss. So let us say the numbers are A, AR and AR square, right? So ABC को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। So that is equal to XB, X into B. So B is AR, X AR. तो हमने A कॉमन ले लिया, right? 1 plus R square is equal to AXR. So A gets common and removed. Now we get X is equal to 1 upon R plus 1 plus R. ठीक है, ये एक चीज आ गई। अब देखो X को एक थोड़ा सा टर्म्स को ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो रूल है ना, ये काफी बार कैट में टेस्ट हो चुका है, राइट। काफी बार टेस्ट होता है फ्रीक्वेंटली। तो व्हेनेवर यू, दिस इज द इनइक्वालिटी रूल, राइट। एएमजीएम इनइक्वालिटी होती है। एएमजीएम इनइक्वालिटी तो ठीक है, वो तो अलग चीज है, बट ये चीज हमेशा याद रखना, अगर नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, राइट, नो मैटर व्हाट द नंबर इज, so this is always greater than equal to, mod is greater than equal to 2. तो बेसिकली अगर r पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है, सो दैट मीन्स r प्लस 1 अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और r अगर नेगेटिव नंबर है, सो r प्लस 1 अपॉन r विल बी लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे, ठीक है। तो या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा, या फिर x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 1 होगा। So x will be either greater than equal to 3 or x will be greater than equal to less than equal to -1. तो -1 से छोटा होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं फिट हो रहा है। इट इज लेस देन -1 सेटिस्फाइड, इट इज लेस देन -1, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 2 हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटीज में है, राइट। आप एएमजीएम इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, वैसे भी अगर आप, जब r 1 या -1 होगा तो हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू होती है। अगर आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 इज 2। अगर आप 1 से थोड़ा बड़ा रखोगे तो ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। 1 से छोटा रखोगे तो भी ग्रेटर देन 2 आएगा। तो मिनिमम हैपेंस एट 1, यहाँ पे मिनिमम at 1, and here in case of negative numbers maximum at -1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, r प्लस 1 अपॉन r वाली। इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स में 2 होती है एंड नेगेटिव नंबर्स में मैक्सिमम -2 होती है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे टेस्ट की गई थी टू फिगर आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर डन विद दोस, हमने यहाँ पे एपी जीपी के क्वेश्चन देख लिए, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉग्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस बेस्ड और लॉग बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले सिंपल है। इट सेज 33 रेज टू द पावर a इक्वल टू 11 रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 81। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखो लोग इसमें लॉग लगा के भी सॉल्व करते हैं। कई लोग, कई टीचर भी इसको लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉग। So 33 raised to the power a is 81, right? Or we can say that it is 3 raised to the power 4. Or we can say that 33 is equal to 3 raised to the power 4 upon a.
ये हो गया 3⁴ क्योंकि यहाँ पे a थी, ये हमने यहाँ डिवीजन में लिया है, 4/a हो गया। तो बेसिकली ऐसे सोचो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया, 33 की पावर a/a कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 4/a, a/a इज 1, दैट बिकम्स 33 इज 3⁴ सिमिलरली 11 की पावर b ये दिया है, तो 11 विल बी 3⁴ ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, व्हाट डू यू गेट, वी विल गेट 3 इज इक्वल टू 3 अब देखो जब हम किसी भी सेम बेस में, राइट, बेस सेम है और पावर्स का डिवीजन है, तो वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। इफ द बेस इज सेम एंड वी मल्टीप्लाई, इन दैट केस वी ऐड द पावर्स, इफ वी डिवाइड वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बिटवीन द पावर्स लेना है, so that will be 4/a minus 4/b, it will happen, okay। So we get that it is 3⁴ is 3⁴ minus 4/b. So what we get is 4/a minus 4/b is equal to 1, or we can say 4 times of 1/a minus 1/b is equal to 1, or 1/a minus 1/b is 1/4। तो बिना लॉग के भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक हैक बताता हूँ, ठीक है, बहुत लाइक जुगाड़ जो होता है कभी कभी वर्क कर जाता है, हर बार नहीं करेगा। यहाँ पे 81 हमें 3⁴ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ 3 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कभी जब बिल्कुल ही कुछ चीज दिमाग में काम ना करे, ठीक है, और मान लो आपके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन लेट्स से 15 सेकंड से आपको ये क्वेश्चन दिखता है और आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, आर या पार का गेम खेलते हैं, एक ऑप्शन मार्क कर देता है, राइट। इफ यू फील दैट वे, तो यहाँ पे आप 1/4 मार्क कर सकते थे। लक आपके साथ होगा तो आप सही हो जाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, लाइक दिस इज जेन्युइन दैट इवन वी डू इट, ठीक है। कभी कभी स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो एक आध क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन में नहीं करना इस तरह का, हर क्वेश्चन में करोगे तो बहुत गलत बात है, बट कभी कभी इस तरह के आप ट्रिक्स लगा सकते हो कि हाँ यार कभी जब कॉन्सेप्ट क्लिक ना करे, ठीक है, अगर कोई चीज क्लिक नहीं कर रही है तो ऐसे आप ऑप्शंस देख के मार्क कर सकते हो। तो समटाइम्स इट वर्क्स, नॉट ऑलवेज। All right, so now let's see the next question again based on indices. So logarithms के साथ साथ indices भी कवर कर लेना, indices से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। And log and indices properties के साथ साथ they always test some tweaks. So if you see past year papers, there are a lot of tweak based questions. थोड़ा सा डेटा ट्वीक कर देते हैं, नंबर्स को ट्वीक कर देते हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। Suppose we are given this 4 to the power 3 plus 6 plus 9 plus 12 and so on up to 3x is equal to 0.0625 raised to the power minus 117, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये होता है 1/16। अगर आपको 1/16 पता है तो ग्रेट, तो ये आपको हेल्प करेगा। 1/16 रेज टू दी पावर minus 117, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 4 है, ठीक है, 16 होता है 4 स्क्वायर, माइनस 1/16 कैन बी राइट एज 4 टू द पावर -2। नेगेटिव पावर में रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 की पावर 2 इज 16, 4 टू द पावर -2 विल बी 1/16, okay। 4 square is 16, 4 to the power -2 will be 1/16, that I hope you know। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको इंडाइसेस लॉग ये सारी आनी चाहिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। Now this is raised to the power 117, so it becomes 4 to the power 230, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया। अब हम बेस हटा देते हैं, 4 to the power this, so we had 3 plus 6 plus 9, now you can apply AP and do it। I would preferably take out 3 common, so that I get 78। Now these are sum of first 10 natural numbers. This is x plus 1/2 is 78, or x into x plus 1 is 156, ठीक है।
अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखो कि 12 और 13 फिट बैठ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। अभी कैसे 12 और 13 फिट बैठ रहा है, देखो एक पहले देखो कि कौन से इंटीजर जो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे 10 और 20। 20 वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 400 समथिंग हो जाएगा। 10 वाला 110 ही बन रहा है, राइट। सो 10 से बड़ा होना चाहिए। 11 और 12, आपको 11 12 की टेबल आती है, ग्रेट। नहीं आती तो लास्ट डिजिट देखो, राइट। ये हमने पिछले कौन सी क्लास में, एक क्लास में हमने एक और देखा था, जिसमें हमने ऐसे ही देखा था कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन वी वर एबल टू फिगर दिस आउट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से if we are given that uh, suppose you do not know this table, we are given that n into n plus 1 is equal to 342, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि 342 के फैक्टर्स क्या हैं तो कैसे करना है, या इससे कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, चलो यहाँ पे फिर भी हम सोच सकते हैं, एक बारी को पता हो सकता है। सो लेट अस टेक सम अदर नंबर, ओके। सो आई विल टेक 1482 ले लेता हूँ। अभी I just did a mental calculation. Suppose we need to do n into n plus 1 is 1482. How to get this thing in seconds? ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है n और n plus 1, पहले एक राउंड ऑफ नंबर देखना है, 10s 20s 30s, ठीक है। चलो मुझे 30s में दिख रहा है, अगर मैं 30 इंटू 31 करता हूँ तो 900 समथिंग आएगा। 930 आपको कैलकुलेट भी करना, 900 समथिंग आएगा, राइट, ये आपको पता है। तो इनफैक्ट 30 से बड़ा होना चाहिए। 40 अगर लेंगे तो 1600 प्लस हो जाएगा, तो 40 तो नहीं हो सकता, राइट, सॉरी, तो ये नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स इट हैज टू बी इन 30s। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज लास्ट टू डिजिट्स इज, राइट। सो लास्ट के जो डिजिट है उनका प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। तो एक होता है 1 इंटू 2, दैट इज 2। अगर 31 इंटू 32 करोगे, 30 इंटू 31 हमारा 930 है, तो ये 1482 तो नहीं पहुंचेगा, राइट। सो 1 इंटू 2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2 इंटू 3 इज 6, ये आपको लिखना नहीं है, मेंटली करना है। 3 इंटू 4 इज 12, 33 इंटू 4 34 हो सकता है। 33 इंटू 34, 30 30s में अगर आपको टेबल आती है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड एसेट, बट लाइक अगर आप 35 स्क्वायर लेते हो, थोड़ा सा इसमें हिट एंड ट्रायल की एफर्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 33 इंटू 34 भी नहीं होगा। देन 34 इंटू 5 विल बी 20, 35 इंटू 36 विल बी लास्ट डिजिट विल बी 0, 36 इंटू 37, राइट, एक ऑप्शन ये। 37 इंटू 8 विल बी 6, देन 8 इंटू 9 इज, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, 36 37 और 38 39। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट स्टिल मतलब एक एक स्टेप अगर आप देखोगे तो 37 इंटू 36 इंटू 37, अगर 36 का स्क्वायर देखोगे दैट इज 1296, अभी भी काफी दूर है। सो इवेंचुअली यू वुड गो विथ 38 इंटू 39, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर आप 40 से रिवर्स में देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज 40 वॉज क्लोजर, राइट। सो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज 40 इंटू 41 इज 1640, ठीक है। तो हम उससे पहले देखेंगे, 39 into 40 will end in 0. 38 into 39 could possibly the answer. तो इस तरह से आप guess कर सकते हो. You can get better at guessing the numbers. Okay, so practice these methods. That will definitely help you in such kind of questions. हाँ, अगर कहीं पे जैसे कैट में कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप कैलकुलेटर का यूज करके भी निकाल सकते हो. Okay, so now let's move on to the next question. So, in case you are preparing for MBA entrance tests and are looking for mock test by MBA Karo, so we have mock tests for all these examinations. You can check our site. So we have launched NMAT, SNAP, ZAT and CAT mocks. ठीक है, तो CAT में हमारे 15 full length हैं plus 10 sectionals हैं. इसमें जो QA है और DILR है, in that we have video solutions and I have created those video solutions. तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि you will learn smart techniques to solve those particular questions. Okay, so that we have. Apart from that, we have mocks for NMAT, SNAP and ZAT. Okay, and we will keep launching these mocks as in the courses are announced, the exams are announced. ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ते हैं. तो if you are enjoying this session, so please don't forget to like this video.
अब हम करेंगे कुछ लॉग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हमने इंडाइसिस बेस्ड कुछ देखे थे, अब हम लॉग के क्वेश्चन करते हैं। So we are given that log 13 is 1.114 and log 3 is 0.477. How many digits are there in this number? ठीक है, तो कभी भी डिजिट कैलकुलेशन का बेस क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव log of some number, right? Log a is equal to x p q r s t and so on. So number of digits is, अब इसका प्रूफ आप नेट में ढूंढ लोगे, काफी इजीली मिल जाएगा। आई डू नॉट वांट टू स्पेंड दोस 1-2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेना, और अगर आपने कहीं से लाइक ढंग की जगह से पढ़ा है तो उन्होंने आपको ये बताया होगा व्हाई इट इज हैपेंस दैट देयर इज नंबर ऑफ डिजिट्स इज x+1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका लॉग निकालना है। तो जो नंबर हमें गिवन है उसका हमें लॉग निकालना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड लॉग ऑफ 351 raised to the power 24. Now that becomes 24 times of log 351. Now 351 can be written as, like if you divide by 9, 9 into 39, 9 can be written as 3 square into 3 into 13. So basically 3 cube into 13, right? So we can say like basically log of 3 cube 24 times of, for now we can write 27 into 13, ठीक है, फिर 3 cube में convert कर लेंगे, right? So that is 24 times of log 27 प्लस log 13, ठीक है, ये हमारा बन गया। log 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। सो थोड़ा log की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अच्छे से आनी चाहिए। log 3 क्यूब प्लस log 13। now log 3 cube is whenever we have power we bring it this side, so it becomes 24 times of 3 log 3 plus log 13, ठीक है। अब हमें log 3 गिवन है, log 13 गिवन है, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर लेना है। So 24 times of 3 log 3. Log 3 is this. So 3 times कर लेंगे. So 77 into 3 is 231. 2 carries, that is 1431. 1431 आ जाएगा, ठीक है। और log 13 is 1.11. तो ये आपका आ जाएगा 24 into 2 point, this is 45. लास्ट टू डिजिट्स 45 हो गए, 5 2.545, इसे मल्टीप्लाई करना हमने 24 से। 24 5 120, 12 carries, 96 108, 10 carries, 120 plus 10 130, 13 carries, and 48 plus 13 61, so 61.080. So it will have 62 digits. So calculation based question है, but the thing is this is how we calculate. Find the log of that number, whatever you get as the log, तो डेसिमल से पहले का जो नंबर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, सो दैट गिव्स अस आवर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन नीड्स टू बी फाउंड आउट, राइट। अब ये क्या है कि यहाँ पे log 770 रेज टू द पावर 1/1, ठीक है, तो इसे में -1 पावर दी है। तो -1 मीन्स इट इज लाइक सी log 770 का अगर हम -1 कर देते हैं तो नेगेटिव पावर मीन्स वी कैन जस्ट लाइक log a b की पावर अगर हम -1 कर देते हैं सो इट बिकम्स log b। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो बेस और जो आपका आर्ग्यूमेंट है दे आर इंटरचेंज, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। so this will become log 77 plus log 4900, and this will be 4 plus log 75, right। अब एक और चीज देखो, 70 स्क्वायर इज 4900, तो ये दो तो एक बारी के लिए वैसे ही एज इट इज रहने देते हैं, लेट्स नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग। इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। ये हमारा होगा log 70 होल स्क्वायर एंड 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, ठीक है, ये बेस ना स्क्वायर होता है, सो ब्रिंग इट दिस साइड, so it becomes half of log 74, ठीक है। तो ये आपको
ये ध्यान देना है कि ये हाफ बन जाता है, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा log 70 एंड देन व्हाट वी कैन डू इज इट बिकम्स हाफ ऑफ, अब इसे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ पे पावर होती है तो ये रेसिप्रोकल बन जाती है, so it becomes half of log 74 and now we can take it as a power over here। और एक और चीज हम ये कर सकते हैं, ठीक है, instead of taking it 2 times we can see that this is 2 square, ठीक है। तो जब यहाँ बेस में पावर होती है तो 1/2 बन जाता है, और ये पावर होती है ये बन जाता है into the power, so 2 and 1/2 will get cancelled, so we can write this in a simplified format as log 70 base 2, right? Base 70 log 2, so we have log 77 plus log 72 plus log 75, right? So log अगर same base में है that becomes log 77 into 2 into, right? So 7 into 2 into 5 is 70, base भी 70 है, argument भी 70 है, that is equal to 1। So log has certain properties, so ensure that you go through all the properties and solve questions based on it, ठीक है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। Now this is another kind of question logarithm which is called nested logarithm। तो क्या होता है, इसमें एक log के अंदर दूसरा log होता है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। So log ABC if we have, so it means that A is the base, this is the power, okay, this is the base and this is the value that we get, right, जिसे argument बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेस है और पावर है, राइट हैंड साइड में पावर आती है। अब देखो अगर हम ये लिख रहे हैं, सो दिस मीन्स कि लॉग ये जो हमारी वैल्यू है और ये पावर है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 रेज टू द पावर 1/2। जो सेंटर में होता है वो वैल्यू होती है, तो अगर ए की पावर सी, अगर इसका मतलब है ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, तो 9 की पावर 1/2 दैट इज 3। तो अब क्या कर देंगे, हम इसे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देंगे 3 log 2 1 plus log 3 1 plus 2 log 2x, यहाँ पे 3 ब्रैकेट से 2 बचेंगे, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट होगा वो 9 की पावर 1/2, तो ये हमारा 1 हो गया, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बेस है, ये हमारी पावर है, so this remaining part should be equal to 2 raised to the power 1 which is 2, so we will get 1 plus log 3 and we have 1 plus log 2। ये क्या होता है, एक के बाद एक लूप होता है, उसे आपको ओपन करते जाना है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसे इधर ले आएंगे, तो वी विल गेट log 3 1 plus 2 log 2x is equal to 1, ठीक है। तो ये बेस हो गई, ये पावर हो गई 1, राइट। सो दिस पार्ट विल बी 3 raised to the power 1 which is 3, so 1 plus 2 log 2, तो एक के बाद एक लूप होता है, आपको लूप बोलते जाना है। सो वी विल गेट 2 log 2x इज इक्वल टू 2, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो log 2x इज इक्वल टू 1, सो दैट मींस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो log 2 2 इज 1, यस। तो नेस्टेड लॉग होता है, इसमें एक के बाद एक आपको ब्रैकेट्स खोलते रहने लॉग रिमूव होते जाते हैं, ठीक है। ये टिपिकली इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट log 5x plus log x 3x plus log x 3xy is equal to log x x cube। We need to find the value of y, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, अगर log के जो बेस हैं, बेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है बेसिस में, राइट। एक 3x है, एक x है, कोई पावर का रिलेशन नहीं बन रहा है, राइट, और एक 5 है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सो जस्ट रिमेंबर दैट इफ यू हैव log a b, so we can make it into a third log, right, we can take it a common log or you can put some other log, let us say c। तो जो ये होता है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो ये होता है बेस, ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर मेरे पास है log 3 और यहाँ पे 7, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 7 अपॉन log 3,
तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है और इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैट में भी कई बार इस तरह की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, राइट। आई रिमेम्बर आई थिंक 2021 या 22 में एक क्वेश्चन था कैट का, पहला ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में लॉग के बेस में आया था, जिसमें टीटा क्वेश्चन था, लॉग 4 और एक में 6 था, बेस 4 था, 6 था, अंडर रूट 5 था, ऐसे करके कुछ था। इसका आंसर 36 आता है, राइट। तो वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आया था मेरे पेपर का, ठीक है। तो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इट विल बी log x अपॉन log 5। दूसरा टर्म क्या हो गया, log 3x, और बेस में हो जाएगा log x डिनोमिनेटर में, ठीक है। और थर्ड टर्म हो गया हमारा log, ऊपर आ जाएगा आपका y, नीचे आ जाएगा log ऑफ 3x, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। और अब ये देखो क्या है, ये यहाँ से अगर हम ले आएंगे तो इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ log xx एंड log xx इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज 1, तो दैट इज इक्वल टू 3, बिकॉज ये 3 इधर आ जाएगा और log x x क्यूब इज 3। और छोड़ो इसको, पावर मत ले जाओ, x की कौन सी पावर x क्यूब होती है, थर्ड पावर, राइट। सो पावर इज अवर आंसर, दैट इज 3। log 3x कैंसिल हो गया, log x कैंसिल हो गया, so we get log y upon log 5 is equal to 3, or we can say log of y is 3 times of log 5, ठीक है। अब जो कोएफिशिएंट होता है ये यहाँ की पावर होती है, so it becomes log of 5 की पावर 3 और log 125। तो अब y और 125 को कंपेयर कर लो, so the answer is 125, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ensure that you know the properties of log। so properties of logs are very important, it has a lot of properties, एक दो प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए और क्वेश्चंस आपसे इजीली बच जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। Here's the next question, it says x and y are positive real numbers, ये दे दिया, ध्यान रखना। log 5x plus y plus log 5x minus y is 3 and log 2y minus log 2x is 1 minus log 2 3, then we need to find the value of x y। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इक्वेशन पूरी देखो, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो जरूरी नहीं है जो फर्स्ट लाइन इक्वेशन लिखी है वो कॉपी करनी है, आपको बस देखना है यहाँ पे क्या दिया, log 5 दिया x प्लस वाई एंड log 5, log a प्लस log b क्या होता है, log 5 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सीधे लिख सकते हो, दैट इक्वल्स टू 3। तो क्या आ गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज बेस, दिस इज पावर, so what do we get, x square minus y square is equal to 5 to the power 3 और 120, ठीक है। ये 125 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप गैस भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर गैस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है 100 और 225, देखो एक गैसिंग गेम भी रखा करो अपने साथ में, कभी कभी वो काम करता है, स्पेशली एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्स में इट डज नॉट मैटर कि आपने आंसर कैसे निकाला, ठीक है, अगर आपके नंबर्स की गैसिंग अच्छी है तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे गैसिंग गेम के, ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे पास आएगा तो मैं गैसिंग गेम करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं y को 10 रख के एंड x को 15 रख के ट्राई कर सकता हूँ, बट एक मेरे मन में है कि x और y मुझे 15 और 10 दिख रहे हैं, राइट। x इज 15 एंड y इज 10, अब ये सही है कि नहीं यह समय बताएगा, लेकिन मैं एक चीज रेडी रखूंगा, अगर मैं क्वेश्चन में अटका तो आई विल मार्क 150 एज द आंसर, राइट। दैट शुड बी योर गेम इन द एग्जामिनेशन, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद नंबर्स। तो नंबर सिस्टम स्किप मत करो, देयर विल बी सम पीपल हु विल टेल कि खाली अरिथमेटिक अलजेब्रा करके चले जाओ, इतनी परसेंटाइल आ जाएगी, दोज आर द मोस्ट फूलिश पीपल हु टीच यू, राइट, बिकॉज दे देमसेल्व्स डू नॉट नो, राइट। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ये अरिथमेटिक का था, ये अलजेब्रा का था, बट द कोर इज देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम, हिडन नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इसमें नंबर की प्रॉपर्टीज डेफिनेटली हेल्प करती है। यार ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज नॉट विदाउट नंबर्स, तो नंबर्स तो हमेशा से करके जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। प्रॉपर वे और ट्रिक्स दोनों आनी चाहिए। log 2x इज इक्वल टू 1 माइनस log 2 3, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कहोगे कि ठीक है log 2y माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा log 2 y अपॉन x आ जाएगा, राइट।
A minus B is log A minus log B is division, right? Plus is multiplication, this is division. Now this is 1 minus log 2 3. अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस स्टेज पे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप कह रहे हो कि 1 माइनस 2 लॉग 3 है, 1 यहाँ पे अगेन नॉन लॉग नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेस क्या चल रहा है, बेस हमारा 2 चल रहा है, बेस 2 है, बेस 2 है, सो हाउ डू वी मेक 1 इन बेस 2? इफ यू एवर गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन वेयर यू हैव अ मिक्स्ड नंबर, अगर नंबर बीच में आ जाता है लॉग के बीच में, तो आपको सेम बेस में रखना। अब देखो यहाँ पे बेस 2 चल रहा है, तो दैट मीन्स लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1। अगर सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा log 2 2 से, ठीक है। तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे log 2 2 से। अब ये क्या हो गया, log a माइनस log b, दैट इज log a अपॉन b। तो ये बन गया, ठीक है। अब ये बन गया, और अब हमें क्या करना है, log 2 y by x log 2 y by 3, so what do we get, y upon x is 2 by 3, ठीक है। तो अब भी देखो 10 और 15 फिट हो रहा है, ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। तो लेट अस से y इज इक्वल टू 2k, x इक्वल टू 3k, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 125। so 5k square is 125, k square is 25, और k आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो k को -5 मत लेना, k is 5, so y is equal to 10 and x is equal to 50। तो ये प्रॉपर वे में भी हमने सॉल्व कर लिया कि 150 आंसर आएगा, और गेस करके भी कर लिया था, एट द मोमेंट आई सॉ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 125। तो टिपिकली वो इंटीजर वैल्यूज ही हैं, अगर नॉन इंटीजर वैल्यू होती तो प्रोडक्ट भी नॉन इंटीजर ही होता, राइट। सो यू शुड थिंक ऑफ इंटीजर्स, तो इसलिए नंबर्स, नंबर्स की टेबल्स, स्क्वायर्स, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीजें हैंडी रखनी चाहिए, काफी काम आती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन ऑल सच क्वेश्चंस। तो मैं इसी पॉइंट पे इतना सा करने के बाद ये आंसर कर सकता था, ठीक है, बट मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा। So this is what makes the difference between toppers and average students. So average students study selective topics and they think कि उनसे ज्यादा आता है तो सही हो जाएगा, बट कैट में काफी चीजों का अमलगमेशन होता है, नॉट इवन इन कैट बट एनी एग्जाम, जिसमें प्रॉपर्टीज बहुत मिक्स होके आती है। Okay, here's the next question. It says x, y, z are positive real numbers such that x to the power y 12 is equal to y to the power 16 is equal to z to the power 24। तो तीन इक्वल है, and the three quantities 3 log y x, 4 log z y and n log z are in arithmetic progression, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्स हो गया log और arithmetic progression का, ठीक है। we need to find the value of n in this question। अब एक चीज ध्यान रखना कि whenever we have to find whenever we are given the three terms in AP, ठीक है, सपोज P Q R अगर AP में दिए होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्ट वे है, which means that P plus Q is average of these two, Q is P plus R by 2, or you can say that P plus P plus R is equal to 2Q, ठीक है। ये AP अगर दिया है, so that should be the first thing that you should be framing। तो चाहे वो AP आपको log में दिया या किसी में भी दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर PQR GP में दिए होते हैं, ठीक है, अगर तीन नंबर्स जीपी में दिए होते हैं, उसका मतलब होता है दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एपी में एवरेज होता है, और लाइक जीपी में द स्क्वायर रूट ऑफ लाइक इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये चीज आपको हैंडी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमने एक क्वेश्चन एपी जीपी में अलग से नहीं किया था, बट यहाँ पे हमारा हिट हो गया। तो दे आर इन एपी, दैट मीन्स द मिडिल टर्म, twice the middle term is sum of the other two terms. So these are in AP. So we have the log y x, okay, plus add किसे करना है, extreme terms को, n times of log x z is equal to 2 times of 4 log
जेड वाई, और वी कैन से 8 log जेड वाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई एपी की कंडीशन से। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें इक्वालिटी दी है x की पावर 12 इज इक्वल टू y टू द पावर 16 इज इक्वल टू z टू द पावर 24। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, वी विल इक्वेट टू सम वेरिएबल एंड टेक एलसीएम एज द पावर। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 48 एलसीएम होता है। ठीक है, तो वी विल राइट इट, लेट अस से a टू द पावर 48। ठीक है, क्योंकि इन्हें कॉमन बनाना है। अब कॉमन बना दिया तो x कितना आ जाएगा, a टू द पावर 4। ठीक है, y आ जाएगा a क्यूब एंड z विल बी a स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें हम फिल कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ log y इज log ऑफ a क्यूब एंड x इज a टू द पावर 4 प्लस n टाइम्स ऑफ log x is a to the power 4 and z is a square is equal to 8 times of log z is a square and y is a cube। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब ये हो जाएगा सी, देखो डायरेक्टली ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो 4/3। अब ये स्टेप सीधे आ जाना चाहिए कि ये अगर हम यहाँ पे पावर होती है सो इट बिकम्स 1/3 एंड दिस पावर बिकम्स 4 हियर, सो 4/3 and a is same this, so 4/3 plus n times of this is 1/2, okay, 2/4, that equals to 8 times of this is 3/2। simple calculation कर लो, 4 plus n/2 is equal to this is 4 into 3 12, 4 by n/2 is 12, so n/2 is 8 or n is equal to 16। we get the value of n as। ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज, तो ये ध्यान रखना एपीजीपी लॉगरिथम इन सब की प्रॉपर्टीज कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकते हैं। सो टिपिकली ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जिसमें एपीजीपी की प्रॉपर्टीज टेस्ट हो सकती है अलोंग विद लॉगरिथम, अलोंग विद सम टाइम इन वर्क और एनी सच थिंग you might be asked on those properties। so APGP कभी मिस मत करना। anyway, पूरा मैं तो कहता हूँ कि पूरा ही सिलेबस आपको एटलीस्ट एक बार कवर करना चाहिए। इन डेप्थ में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हो, बट बेसिक प्रॉपर्टीज आपको सारे चैप्टर्स की आनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी आर गिवन दैट log a एंड log b रूट ऑफ c प्लस रूट d इज 0। ठीक है, फिर दिया है a b c d आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a इज लेस देन b, लेस देन c, लेस देन d, वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ d। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो कि ये कुछ भी वैल्यू हो, राइट, सो दैट विल बी a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब a हम बाद में देखेंगे, तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन एज log b रूट c प्लस रूट d इज इक्वल टू 1, राइट। सो दैट मीन्स रूट c प्लस रूट d इज इक्वल टू b, क्योंकि b की पावर 1 है, राइट। अब हमें क्या दिया है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली c और d परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बिना परफेक्ट स्क्वायर के ये काम नहीं करेंगे, otherwise you will get something in root and b is a positive integer, so we have to check perfect squares। ठीक है, अब हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम c को 1 ले लेते हैं और d को 4 ले लेते हैं, ठीक है, 1 and 4 if you take, so cd is we are taking c comma d as 1 and 4, so what do you get, 1 plus 2 that is equal to 3। ठीक है, अब b की वैल्यू 3 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि b हैज टू बी लेस देन c, तो हम c को हमें b से छोटा लेना है, राइट। वी कैन नॉट टेक हायर वैल्यूज फॉर, तो चलो हम ऐसा करते हैं, c को हम नेक्स्ट ले लेते हैं, c को 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि b तो 3 आ रहा था, अगर हम c 4 ले रहे हैं। ठीक है, अब c 4 ले रहे हैं तो d आप 4 नहीं ले सकते, d को c से बड़ा लेना है, तो हमने 9 ले लिया, तो इट बिकम्स 2 plus 3 that equals to 5। ठीक है, if we take c and d as 4 and 9 we will get b as 5, right, but is b less than c,
तो बी यहाँ पे 5 हो रहा है, सी 4 ही रह रहा है, बी को तो 5 सी से छोटा होना है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये दो केस पॉसिबल नहीं है। देन इफ यू टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, सी को हमें और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बी सी से बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो सी को हम 9 लेंगे तो डी को हमें मिनिमम 16 लेना पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम लेके चल रहा है। तो वी गेट 3 plus 4 that is equal to 7. Does that make sense? Can we have B as 7, C as 9, D as 16? Perfectly fitting. अब आप सोच रहे हो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, ए की वैल्यू आप 3 ले लो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे डज नॉट मैटर ना, log 3 और ये 0, सो ए की पावर तो 0 ही आनी है ना। सो वी कैन टेक ए एज एनीथिंग बिटवीन 2 and 6, 2 से 6 तक की ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट? सो बी की मिनिमम वैल्यू पूछिए, बी की मिनिमम वैल्यू आएगी 7। तो रियली गुड क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक दैट। पहली चीज तो आपको सोचनी कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर सोच लिया, फिर उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन देखने कि C शुड बी greater than B. So when we take 9 and 16, then only we get the least value of B. Okay, so in case you are preparing for MBA entrance examinations and you are looking for section wise preparation, so you can check out our courses. And here are some questions for you to answer in the comments of this video. ठीक है, तो हमने काफी questions क्लास में सॉल्व किए और ये आपके लिए होमवर्क है। ट्राई दीज क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, 2 आपके सीरीज बेस्ड हैं, 2 लॉगरिथम बेस्ड हैं। ट्राई दीज क्वेश्चंस, लास्ट वाला तो काफी इजी है, ठीक है? और लाइक जो लॉग के दोनों क्वेश्चंस काफी इजी हैं, उससे अच्छा तो हमने सेशन में किए थे। तो इनको कमेंट्स में आंसर कर देना एंड वेट फॉर द अदर सेशंस आल्सो. And like you can get the PDFs of these sessions on our Telegram group, so don't forget to join it. So hope you must have enjoyed today's session. आज हमने log और sequences and series के काफी अच्छे क्वेश्चन किए। इनफैक्ट जितनी जो भी सीरीज चल रही है उसमें हमने काफी चीजें सीखने को मिली है, काफी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव क्वेश्चंस देखे, ठीक है? दे आर नॉट जस्ट सिंपली कि PYQs डाल दिए एंड ऑल, राइट? दे आर सम गुड क्वेश्चंस, रियली थॉटफुल क्वेश्चंस which develop thinking ability. Okay, so if you watch this series, if you're this is the first video that you have watched, please watch the other videos also. और पूरे 30 डेज देखो, डेफिनेटली आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे आप क्वेश्चंस को बेटर वे में सॉल्व कराओगे, और बेटर वे में अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो ऑफकोर्स आपका स्कोर बूस्ट होगा, क्योंकि आपने हो सकता है कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़े होंगे बट आप जो टेक्निक्स हैं ये सब आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपने मॉक्स में, इसलिए आपका स्कोर लोअर एंड पे जा रहा है। अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो it's a request that try applying these techniques and you will see huge improvement in your scores, and all the best for your exams as well.